everyone, I am CS Riddhi Jain and I am going to teach you Essay 501. Which essay is this? This is Essay 501. Is it important and relevant for your examinations? Definitely yes. If you are hearing this recording, if you have your attempt this November 23 or in May 24 onwards, you can definitely watch out this lecture. Where is it given? It's given in page number 4.68, chapter number 4 in your new module. People who are actually attempting on May 24 examination onward can check their module, and the old course people basically who have not opted, who are not rewriting the papers as per the new curriculum, you can also check out in your chapter number 5, essay 501. Now, what this essay 501 is? This essay 501 is also about audit evidence. Yes. Did we read essay 500? Yes. Essay 500 का नाम क्या था? Essay 500 का नाम था audit evidence. Now, what this particular essay 501 says, किसके बारे में है मैम, नाम क्या है, कैसे हमको याद होगा? I'll make sure that I take care of everything. You just be there and hear out this video, understand whatever I say, and I'm sure you're going to make it to essay 501 very nicely. You're going to process it in your brains and it's going to be there in your long-term memory. How do you ensure it? The way people said कि I can easily score good marks in my examination when it comes to practical examination. I was a similar person who would say, oh, theory paper I can do well, but what about practical? I was like, no, not my cup of tea. Eventually, I was able to exempt those papers too and these papers too. But the real fact is, when it comes to theory, I'll make sure that it goes in your brain and your heart and you remember it lifetime. Now, essay 500. नाम क्या है essay 500 का? Audit evidence. Here what is written? It's written essay 501. Once it writes essay 501, it means what? कुछ स्पेशल चीज है एक, तब तो इसका नाम भी कुछ स्पेशल है, तो इसका नाम भी कुछ स्पेशल है. essay 501, it's special. You have some special things to be looked at. कुछ स्पेशल सिली चीजों को आपको देखना है. When I say silly, I'll make sure there is something that I have to talk about these silly things here. So that is special consideration for selected items. ये one क्या है? essay 500 audit evidence का होता है. Audit evidence with special consideration on selected items. When I say special consideration for the selected items, you have to give, for selected items, you are giving special consideration. That means which essay? It is essay 501. लिखा क्या है शुरू में? It is also audit evidence. Then hyphen special consideration, right? किन चीजों के लिए आप ये कौन से selected items हैं जिसके लिए आपको special consideration देना? I'm sorry. So कौन से ऐसे items हैं? Those are the silly things. What are the silly things? This is S. This is I, this is L, and this is LY. Love you, darling. It goes out of the box, right? So it is segmented information, inventory, and litigation and claims. So whenever I talk about these three things, आपको कोई AS याद आना चाहिए क्या? Definitely yes. आपको कोई accounting standards भी याद आना चाहिए. Segment information का accounting standard क्या है? Accounting standard 17. इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्रीज AS2, लिटिगेशन एंड क्लेम्स AS29. कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला आपको ऐसे याद आ जाना चाहिए. So make sure when you write your audit papers, most of the people, they don't get marks because they don't give reference to standards. At the same time, आपको accounting standards भी ध्यान रखना है, auditing standards भी ध्यान रखना है when you are writing your audit papers. So what are the three silly things covered here? Segmented information, inventory, litigation, and claims. Now, here we go about the things. What are the things that are to be checked here? Segment information. Segment information का क्या देखना है हमको? Disclosure. Disclosure में भी क्या? वो FRF के according है. What is FRF? Financial Reporting Framework. When I say Financial Reporting Framework, I think you already know balance sheet PL. आप Schedule 3 के हिसाब से ही तो बनाते हो आज की डेट में, right? So, segment information financial reporting framework के हिसाब से हुई है या नहीं? Now, who creates all the financial information? These financial informations are actually prepared by the management. तो आपको किसको देखना पड़ेगा? Management को देखना पड़ेगा, right? Management को जब आप देखोगे, auditor क्या करता है? Generally कुछ audit procedure लगाता है. उस audit procedure से वो उसके methods को भी check करता है, right? तो सिंपल, जब हम सेगमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हम मैनेजमेंट को देखेंगे, हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करेंगे. एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हमारे दिमाग में और जहन में आता है. परफेक्ट. इफ यू नो दिस, दैट मीन्स यू आर कमिंग टू द बुकिश लैंग्वेज ऑफ द थिंग्स.
यू हैव टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स. आप सिंपल एक पाप करने वाले हो क्योंकि आप क्या हो, ऑडिटर हो. सिंपल पाप. हाँ, आई विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड पाप टू. तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड पाप है वो आप बाद में करोगे. सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बिकॉज यू आर एन ऑडिटर. टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट का मेथड, मैनेजमेंट किस मेथड से सेगमेंट इंफॉर्मेशन को लेता है और क्या वो मेथड कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहा है या नहीं. यू जस्ट check it in case of segment information. Check the disclosures are done correctly. What you're going to check here, the disclosures. What is the next part here? Disclosures as per FRF हो रहा है कि नहीं. अगर आपको सिली चीज की एस को आप चेक कर रहे हो तो ABCD2 याद करना है. बट बिफोर आई टेक ABCD2 आई एम लाइक लीव दोस थिंग्स. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके दिमाग में क्या चीज आती है. अब आप इसका डिस्क्लोजर कर रहे हो. डिस्क्लोजर कैसा होना चाहिए. डिस्क्लोजर तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट. तो उसने बराबर डिस्क्लोज किया होगा कि नहीं, ये सारी चीजों को हम चेक करेंगे. क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो शायद इंटर रिलेशन ऑफ सेगमेंट्स भी बैठाया होगा. परफेक्ट. व्हाट एल्स सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में और क्या चीजें आती होगी. हमने अपने दिमाग में कुछ चीज करके रखी होगी और एक्चुअली कुछ और हो रहा होगा. क्या ऐसा हो सकता है. द आंसर इज यस. क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब अलग अलग सेगमेंट में चीजों को ले जाना पड़ेगा. परफेक्ट. यू आर गोइंग टू एलोकेट थिंग्स. यस. दोनों सेगमेंट्स के बीच में कुछ हो रहा होगा. परफेक्ट. यू आर गोइंग टू कंपेयर थिंग्स. और क्या देख सकते हैं मैम, उसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं क्या, किस तरीके से वो आ रहा है, पहले कैसे लाए थे, इस बार कैसे ला रहे हैं. आप एक ऑडिटर हो. जस्ट थिंक प्लेन वेनिला फैक्ट्स एज इफ यू आर द ऑडिटर. आप क्या देख रहे हो, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन. व्हाट इज दैट. इट इज द सिली आइटम जिसको आप स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम में लेते हो. यस. सबसे पहले आप देखोगे एलोकेशन कैसे कर रहे हो, एसेट की और कॉस्ट की किस टाइप से आपने उसको एलोकेट किया है. दैट इज ए. व्हेन देयर आर टू सेगमेंट्स, सो हाउ इज इंटर सेगमेंट इंफॉर्मेशन डेल्ट विद. क्या उस इंटर सेगमेंट इंफॉर्मेशन में एलिमिनेशन हो रहा है सेल्स का और ट्रांसफर चार्जेस का. कौन सी चीज का, सेल्स का और ट्रांसफर चार्जेस का. पार्डन फॉर माय ए की मुंडी खुली हो गई, उसके दिमाग में बहुत सारे न्यू इनपुट्स आ रहे हैं. द वे इट्स कमिंग इन योर ब्रेन्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपने क्या देखा, ए से एलोकेशन कॉस्ट का और किसका, एसेट का. देन यू विल सी बी सेगमेंट के इंटरलिंक विद सेगमेंट्स विद ईच अदर. अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन द सेगमेंट्स तो यू हैव टू सी सेल्स एंड ट्रांसफर चार्जेस का एलिमिनेशन हो रहा है नहीं. अपने कंपैरिजन देखना है. यू हैव टू कंपेयर. अगर आपने कुछ with budgeted and expected results you have to compare things. What is your C2 here. दूसरा C है कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं. प्रायर पीरियड से 2022 में जो लगा है 2023 में जो लगा है कैसा है, वो पहले से कंसिस्टेंट है या नहीं. So when you see segment information, first things that should come into your mind is management की चीजों को हमको ध्यान में रखना है. पहला हम ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, मैनेजमेंट का देखेंगे कैसे वो मेथड परफॉर्म कर रहा है, क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं. फिर ABCD2 देखेंगे. इस ABCD2 में फर्स्ट क्या है, एलोकेशन. बी में क्या है, बिटवीन सेगमेंट्स में ट्रांसफर. इंटर सेगमेंट ट्रांसफर में हम सेल की और दूसरे कॉस्ट की एलोकेशन को कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं. व्हाट इज योर सी हियर. इज सी कंसिस्टेंसी. लास्ट वाली है. सी में आप कंपेयर करोगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को और बजटेड रिजल्ट्स को. फिर उसकी क्या देखोगे, कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी किससे देखनी है आपको, उसकी प्रायर पीरियड से कंसिस्टेंसी देखनी है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, AS2 वाली चीज, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री की ऑडिट तो बहुत फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है. जब भी आप कभी ऑडिट में जाओगे तो देखना बॉस आपको बोलेगा कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करके. आप सोचो, आप जब इन्वेंट्री के ऊपर जा रहे हो, आप इन्वेंट्री की ऑडिट कर रहे हो और आपको स्पेशली बोला है स्पेशल कंसिडरेशन दो क्योंकि ये एक सिलेक्टेड आइटम है, तो आप कैसे इन्वेंट्री की काउंट करोगे. ठीक है मैम, मैं फिजिकली खुद जाके खड़ा हो जाऊंगा. ग्रेट इनफ. और क्या कर सकते हो, मैं नहीं किया तो किसी और को भेज दूंगा. ठीक है, ग्रेट इनफ. वहां जाओगे तो करोगे क्या, इन्वेंट्री को काउंट करोगे. देखोगे सामने वाला कैसे काउंट करता है, उसकी रिकॉर्डिंग देखोगे, उसके तौर तरीके देखोगे, राइट. उसके हिसाब से आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, डेट्स को भी देखना पड़ेगा. परफेक्ट. आप किसी पर्टिकुलर डेट पे जा रहे हो तो डेट्स देखोगे. और क्या करोगे, इन्वेंट्री उसकी एग्जिस्टेंस कंडीशन के लिए. इन्वेंट्री कोई पर्टिकुलर कंडीशन में एग्जिस्ट कर रही है, उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन को आपको वहां पे क्या करना है, चेक करना पड़ेगा. यही तो लिखा है इस ऐसे में. फर्स्ट, whenever you read any kind of standards of auditing, use your common sense. These books were also written by somebody like you and me. That is the reason I take you to the note of the fact that पहले नॉर्मली तो सोचो. नॉर्मली सोचोगे तो क्या चाहिए, मैं ऑडिटर हूं तो मुझे क्या चाहिए, ऑडिट एविडेंस चाहिए. दैट इज व्हाट इज रिटन. You have to check the materiality. When you check कि क्या ये इन्वेंट्री मटेरियल है कि नहीं,
अगर मान लो एक इंडस्ट्री है, उसके पास बहुत सारी इन्वेंट्री है और सारी चीजें, वो इन्वेंट्री, कोई बिजनेसमैन है, बहुत सारी इन्वेंट्री मैनेज करता है, और वहां पे हमको लगता है कि यहाँ कोई मटेरियल एविडेंस मिल सकता है, वो मटेरियल है, इन्वेंट्री बेसिकली करोड़ों में है और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो भी करोड़ों में, तो आप क्या बोलोगे, जाके फिजिकल इन्वेंट्री को एक बार चेक कर लेना। किसको बोलोगे? अपने एंगेजमेंट पार्टनर को या अपने ऐसे ऑडिटर को जो उस चीज की ऑडिटिंग कर रहा है। एग्जैक्टली। सो यू हैव टू ऑब्टेन SAAE रिगार्डिंग द मटेरियल आइटम। व्हाट दिस मटेरियल आइटम इज? दिस मटेरियल आइटम इज इन्वेंट्री। उसकी एग्जिस्टेंस और उसका कंडीशन देखना है, राइट? उसकी एग्जिस्टेंस और उसका कंडीशन देखना है। नाउ द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले आप क्या कर सकते हो भैया, आप खुद जाके प्रेजेंट हो जाओ इन्वेंट्री काउंट में। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, प्रेजेंट सर, ओके, व्हाट यू विल गो एंड डू देयर। अब सबसे पहले क्या करोगे, वहां जाके खड़े हो गए तो इवैल्यूएट करोगे मैनेजमेंट क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मैनेजमेंट के क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या मैनेजमेंट उसको रिकॉर्ड कैसे करता है और कंट्रोलिंग कैसी है वहां पे। यहाँ पे कंट्रोलिंग बेसिकली इंटरनल कंट्रोल या फिर साथ ही साथ उसका मैनेजमेंट किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहा है और कैसे उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको आपको देखना है। एंड रिजल्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, उस फिजिकल इन्वेंट्री काउंट PIC का रिजल्ट क्या आ रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट क्या करना है आपको, मैनेजमेंट किस तरीके से चीजों को कर रहा है, मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट का प्रोसीजर, उसके बाद रिकॉर्डिंग, कंट्रोलिंग एंड रिजल्ट ऑफ फिजिकल। देन यू हैव टू ऑब्जर्व, देखो 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 क्या कर रहा है वो, किस तरीके से कर रहा है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। यू जस्ट हैव टू सी मैनेजमेंट का प्रोसीजर व्हेन यू ऑब्जर्व इट, व्हेन यू इवैल्यूएट, देन यू ऑब्जर्व। उसके बाद क्या करोगे, इंस्पेक्ट कर लो, कुछ डैमेज वैमेज तो नहीं हो गया, हेर फेर तो नहीं है, सही सारे आइटम्स तो है ना, जिस आइटम की बात कर रहा है वो है ना, इसका आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन करोगे। Then you have to perform test count. Randomly you are standing and watching and you are attending. You can actually jump in and वहाँ पे आप टेस्ट काउंट करो, कुछ चीज़ों को काउंट करके देखो। Randomly you can think of, okay, I'll see 1 to 10 items. Then I'll see 100 to 200 वाले items. ऐसे मैं कुछ सैम्पलिंग बना के जाके उसकी चेकिंग कर सकती। तो you have to evaluate, you have to observe, you have to inspect and you have to perform procedures once you go इन द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। अगर आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में प्रेजेंट हो तो आप ये करोगे। अगर आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में प्रेजेंट नहीं हो तो इफ यू आर नॉट एबल टू गो देयर, परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। ये बड़ा पाप है क्योंकि आप क्या हो, एक ऑडिटर हो। तो अगर आप खुद ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर रहे हो, कोई और परफॉर्म कर रहा है, so what is that? You have to perform alternative audit procedure. When you perform an alternative audit procedure, you have to check the inventory records. If they reflect actual position or not, क्या वो actual position reflect कर रहे हैं? Yes, so smile. Oh, yes. If yes, then smile. If no, let it be. Then what you have to see is, अगर आप जा नहीं पा रहे हो and if you are going other than financial statement date, normally आप क्या होता है, बैलेंस शीट PL की डेट पे जाके परफॉर्मेंस करते हो। पाप क्या होता है, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स। बहुत बड़ा पाप क्या होता है, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, जहाँ पे आप नॉर्मली प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे हो। अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स वहाँ पे लगाओगे तो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को आपको देखना है कि वो बराबर रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। यहाँ पे आप दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे गए तो आप ऑडिट प्रोसीजर खुद परफॉर्म कर रहे हो क्या? यस, आप खुद परफॉर्म कर रहे हो। उसमें आपने क्या चेक करना है, क्योंकि डेट में चेंज है ना, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है और आप जिस डेट पे गए थे काउंट डेट वो अलग है, बिकॉज इट इज अ चेंज। मैथमेटिकल स्टूडेंट्स ना चेंज ऐसा बनाते हैं, इफ यू आर हियरिंग टू मी एंड माई रिकॉर्डिंग्स, मेक श्योर दिस इज द साइन ऑफ चेंज। अगर चेंज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट में और काउंट डेट में, तो क्या आप उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है नहीं। पहले आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में गए, दूसरा आप नहीं गए तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, तीसरा date other than date of financial information. Then what you have to do is, due to unforeseen circumstances, if you are not able to go at and that particular date, जब आपने सोचा था, तो आप किसी alternative date पे जा सकते हो। What this alternative date means here? आप कोई alternative date में जाओगे और वहां पे प्रोसीजर करोगे। प्रोसीजर किसके करोगे? इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस के। आप क्योंकि दूसरे डेट पे गए हो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के कारण, तो जो जो जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए थे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज व्हाट, अगर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ गए, ऐसे ही इम्प्रैक्टिकेबल कोई सिचुएशन आ गई, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि अभी आप वहां पे क्या कर रहे हो,
जा पा रहे हो, उस केस में यू हैव टू सी द नेचर एंड लोकेशन। क्यों नहीं जा पा रहे हो वहां पे आप ऑडिट करने के लिए? यू जस्ट हैव टू सी द नेचर एंड ओकेजन, यू हैव टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन SAAE रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। क्या हमने इसके बारे में पहले भी बात की? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन देखना ही है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एग्जिस्टेंस और कंडीशन के लिए ही अपन लेते हैं। अगर नहीं मिल पा रहा है हमको कोई भी ऑडिट एविडेंस, तो मॉडिफाई कर दो एज पर SA 705। आप अपनी रिपोर्ट को क्या कर सकते हो? वहां पे मॉडिफाई कर सकते हो, राइट? I'll teach you SA 705 but sometimes later. Now, अगर वो किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है तो आप उसको क्या बोलोगे? Give us some kind of confirmation. You have to request them some kind of confirmation. उसकी वेयर हाउस रिसिप्ट, अगर वो प्लेस्ड है, कोई ऐसा स्टॉक है अगर वो प्लेस्ड है तो आप उसको देख सकते हो। एग्जैक्टली यस। अगर कोई प्लेस्ड स्टॉक है तो आप थर्ड पार्टी को क्या बोलोगे? उसके बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, रिक्वेस्ट करोगे, कंफर्मेशन बताओ। या फिर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर में आप उसको जाके इंस्पेक्ट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट? अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आप ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहे हो ऑडिट एविडेंस, तो उस केस में आपको डिस्क्लेमर देना है। नाउ व्हेन आई टीच इन माय लाइव क्लासेस एंड व्हेन आई टीच फिजिकली टू माय स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज टेल देम, अगर मैं उनको लाइव ऑनलाइन नहीं पढ़ा रही हूँ तो मैंने उनको एक समरी दे के रखी है, डिस्क्लेमर कब देना है और एडवर्स रिपोर्ट कब देना है। रिमेंबर, जब भी लिमिटेशन ऑन स्कोप, मतलब आप कुछ काम कर सकते हैं पर आपको वो करने नहीं दिया जा रहा है, तो डिस्क्लेमर लगेगा। और कभी भी आपका डिसएग्रीमेंट होता है विथ मैनेजमेंट, तो आपको कैसी रिपोर्ट देनी है? एडवर्स। ध्यान रखना इस चीज को। डिस्क्लेमर comes from L here. How it went to the rubber part. Limitation. उसको कलरफुल होने का मन हो गया लगता है मुझे। Exactly, I'm like, so this L and this L, this D and this D. Remember it this way, it is going to help you for the lifetime कि कब आपको डिस्क्लेमर देना है, कब आपको एडवर्स देना है। अगर आपको कोई रोक रहा है कुछ काम करने से तो दैट इज लिमिटेशन। अगर आपका मैनेजमेंट से कोई अनबन हो गया, मैनेजमेंट से कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कुंफू फाइट, कुछ भी इस तरीके की चीजें हो गई, तो व्हाट इज दैट? दैट इज डिसएग्रीमेंट विथ मैनेजमेंट, एडवर्स दे दो। यहाँ पे क्या हो रहा था? सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा था। डिस्क्लेमर मतलब हमको क्या हो गया? मिल नहीं रहा है। ये क्या है हमारे लिए? लिमिटेशन ऑफ स्कोप। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लिटिगेशन एंड क्लेम्स। लिटिगेशन एंड क्लेम्स, लिटिगेशन मतलब छोटे छोटे ऐसी चीजें कोई हो गई जिसमें आपको किसी एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली, यस यस। एडवोकेट को क्या बोलते हैं? लीगल काउंसिल बोलते हैं। क्या लिखा होगा यहाँ पे? कुछ लोग अपना इन हाउस लीगल काउंसिल बिठा के रखते हैं, मतलब खुद के यहाँ पे लॉयर्स होते हैं कि फ्रीक्वेंटली वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके पास इन हाउस लीगल काउंसिल है। बाकी लोगों के पास कैसे हैं? एक्सटर्नल आउट हाउस लीगल काउंसिल्स उनके पास हैं। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है जो उनके घर के अंदर पे नहीं लेकिन कहीं बाहर पे रहते हैं, वैसे वाले लीगल काउंसिल्स। तो व्हाट वी हैव टू सी हियर इज वेरी सिंपल। आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स। आपको क्या देखना है? लिटिगेशन एंड, सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको अपने लिटिगेशन एंड क्लेम्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दोज लिटिगेशन एंड क्लेम्स, आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड दोज लिटिगेशन एंड क्लेम्स, आपको इंक्वायरी करना है मैनेजमेंट से या इन हाउस लीगल डिपार्टमेंट से। किससे इंक्वायरी कर रहे हो? मैनेजमेंट से या इन हाउस लीगल डिपार्टमेंट से। जैसे ही आपने इंक्वायरी किया उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पे कोई लिटिगेशन क्लेम्स आ रहा है, आप क्या कर रहे हो? ऑडिट एविडेंस, स्पेशल कंसिडरेशन रिगार्डिंग द स्पेसिफिक आइटम्स। तो यू हैव टू चेक द मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड करस्पॉन्डेंस। अगर इनके पास कोई आउट हाउस बाहर का कोई लीगल काउंसिल है तो उससे कोई बातचीत करे क्या? उसमें कोई चिट्ठी पत्री है क्या कि ये कोई पर्टिकुलर केस चल रहा है इनके ऊपर? यू जस्ट हैव टू सी इट। देन यू हैव टू सी द लीगल एक्सपेंसेस। कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है और या फिर रेवेन्यू अकाउंट में आपने दिखा के रखा है कि ये मेरा एक्सपेंस है। अगर वहां पे शो रहा है तो इसको पिकअप कर लो। जैसे ही आपने उसको वहां से पिकअप किया तो आपको पता क्या चल गया?
इन चीजों को आप ध्यान से देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इन हाउस लीगल काउंसिल, सबसे पहले मैनेजमेंट, इन हाउस लीगल काउंसिल, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ये सब अगर मिल गए तो उसके बाद नहीं भी मिले तो आप क्या देखोगे कि वहां पे कहीं पे उसके कॉस्ट का कोई क्लेम या एक्सपेंसेस का कोई क्लेम तो नहीं किया हुआ है। आफ्टर दैट व्हाट, अगर मिल गया तो उसके बाद रिस्क देखो, उस केस में रिस्क है क्या, मतलब कोई डरने वाली चीज है क्या यहाँ पे हमारे को जो हमको डराती है। यू जस्ट हैव टू सी इट। अगर हाँ डराती है, नहीं डराती है, जो भी, अगर रिस्क आइडेंटिफाई हो गया तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो किससे? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से उसको रिक्वेस्ट करो कि तुम हमको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर दो। आपने क्वेश्चन पूछा, आपके लॉयर ने आंसर दे दिया। कौन सा लॉयर है? एक्सटर्नल। अगर मैनेजमेंट मना कर देती है या फिर ये जो लीगल काउंसिल है वो रिस्पॉन्ड करने से हमको मना कर देता है, मैं तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैनेजमेंट मुंह चढ़ा के बैठी, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, तो परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, आपको पाप करना पड़ेगा। ये वाला पाप कौन सा है? बड़ा वाला पाप। इस पाप में क्या है? आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप उस केस में तभी ले सकते हो जब आपको लॉ परमिट करता है, तभी आप ये चीजों को कर सकते हो। वहां पे अगर आपको अप्रोप्रिएट सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिल गया, ओके स्माइल, आई गॉट माय ऑडिट एविडेंस। अगर नहीं मिला, अनेबल टू ऑब्टेन, तो आपको ऐसे 705 में अपनी रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट स्टेप 3, पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसकी रिस्क आइडेंटिफाई की। अब क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। रिटन रिप्रेजेंटेशन ऐसे 580 में दिया हुआ है। अगर आपकी नॉलेज में आया है तो इफ यू नो, इफ देयर इज सम एक्चुअल और इफ देयर इज एनी पॉसिबल व्हाट लिटिगेशन या कोई क्लेम है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। एंड एज सून एज यू फाउंड दैट पर्टिकुलर केसेस, you know any cases, there are actual cases, there are any possible kind of cases, you have to disclose it. आपको क्या करना है? उसको disclose कर देना है, right? Now, is it found in your books? Yes, you can open your books and you can see your study material. SA 501 is very important. Specifically, if I talk about what is the most important thing, one is this. What is the other one? This is very, very important that you attend physical inventory count, you evaluate, you observe, you inspect, and you perform test count, you perform alternative audit procedures there. If you go at date other than financial statement date, then you have to see the change, उसको properly record किया है या नहीं, दोनों डेट का डिफरेंस। अगर कोई unforeseen circumstances आ जाते हैं तो you have to go on alternative date, and then you have to perform audit procedure for intervening transactions. अगर impracticable हो जाता है, if you are not able to go there, if it is not practicable, no nature, location, मतलब कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो उसको impracticable बोलते हैं। उस केस में आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर SAA एग्जिस्टेंस कंडीशन के लिए, नहीं तो मॉडिफाई कर दो अपनी रिपोर्ट। अगर नहीं तो वो थर्ड पार्टी के पास पड़ा है तो उससे डॉक्यूमेंटेशन मांगोगे, कंफर्मेशन की उससे रिक्वेस्ट करोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप उस पर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके इंस्पेक्ट कर सकते हो। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपको मिल ही नहीं रही है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ये आपके लिए लिमिटेशन ऑफ स्कोप है। Once it is limitation of scope for you, मतलब आपको क्या देना है? वहां पे डिस्क्लेमर देना है SA 705 के हिसाब से, राइट?